Hello students, welcome to the world of physics and our today's topic is speed and velocity. आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है. स्पीड एंड वेलोसिटी. Okay, let's start. Speed and velocity. First of all, we will discuss what is speed. स्पीड क्या होता है? ड्यूरिंग मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन ए गिवन टाइम, तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्पीड. यू कैन डिफाइन द स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड. ओके स्टूडेंट, द डिस्टेंस, यू कैन राइट द डिस्टेंस traveled by a body, or you can say any object, the distance traveled by a body per unit time is known as speed of the body. Per unit time is known as speed of the body. Speed of the body, that is speed is equal distance traveled by a body, distance traveled by a body divided by a body divided by time taken. This is the speed of the body. Okay student, simply distance traveled by a body per unit time is called speed. इसे आप स्पीड बोलते हो. तो सिंपली आपको याद रखना है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है. नाउ द यूनिट, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर और टाइम के होते हैं सेकेंड. तो स्पीड के यूनिट बनेंगे मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, दैट इज पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम. ऑल्सो सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGA सिस्टम. अब लार्जर डिस्टेंस और लार्जर टाइम के लिए किलोमीटर पर सेकेंड ले सकते हो. नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज एज डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज L and that of time is T, the dimension will be LT minus 1. This is the dimensional formula of the speed. Very simple. This is dimensional formula of the speed. Okay students, now some note point about the speed. As you know by the definition, speed is the distance traveled by a body in given time. Actually distance is a scalar quantity. It has only magnitude, not direction. So speed is a scalar physical quantity. तो आप कह सकते हो speed भी एक scalar physical quantity है, because it has only magnitude and no sense of direction. इसके पास direction की कोई sense नहीं होती. That's why you can say speed is a scalar quantity. Second one, speed is always positive because distance is always positive during motion. Speed कभी ज़ीरो नहीं हो सकती ड्यूरिंग मोशन, नेगेटिव नहीं हो सकती. तो आप कहोगे इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट कैन नेवर नेगेटिव. ये नेगेटिव नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती. Okay student, speed is a scalar physical quantity, always positive, can never be negative, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. These are some important points about the speed. This is the speed. Now there are some another type of speed. कुछ अलग टाइप भी है स्पीड के, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म, दैट इज इक्वल, एक जैसा. इफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी मूव्स with uniform speed or constant speed,
it will travel equal distance in equal interval of time. ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम के अंदर तो उसकी स्पीड होगी यूनिफॉर्म. पार्टिकल और अ बॉडी is said to be moving with यूनिफॉर्म स्पीड. आप कहेंगे कि पार्टिकल या बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है. और कांस्टेंट स्पीड, आप यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो. कब? इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time. Equal distances in equal intervals of time. Equal intervals of time. Okay students, ये टाइम जितना भी छोटा हो सकता है. Howsoever small these intervals of the time may be. Howsoever small these intervals of time may be. This is called uniform speed. Okay student, this is called uniform speed. A particle or a body is said to be moving with uniform speed or constant speed. Uniform speed or constant speed if it travels equal distances in equal intervals of time. Okay students, for example, if an object covers 5 meters in every 5 seconds, then the object is said to be moving with uniform speed. क्योंकि वह equal distance equal time में कवर कर रहा है तो आप बोलोगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. नाउ द सेकंड इज वेरिएबल स्पीड. नाम से पता चल रहा है वेरिएबल मीन्स टू से वो चेंज हो रहा है. वेरिएबल स्पीड. अ पार्टिकुलर बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल में करे तो उसे आप वेरिएबल स्पीड बोल सकते हो. अ पार्टिकल और अ बॉडी is said to be moving with variable speed. Moving with variable speed if it travels unequal distances in equal intervals of time. Unequal distances in equal intervals of time. Howsoever small these intervals of time may be. चाहे जितने भी छोटे टाइम आप लो. Howsoever small these intervals of time may be. This is called the variable speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे बोलोगे वेरिएबल स्पीड. तो क्या पढ़ा आपने? A particle or a body said to be moving with variable speed if it travels unequal distances in equal intervals of time. Howsoever small these intervals may be. इसकी अनदर डेफिनेशन भी हो सकती है. अ पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस. यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस आ सकता है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो दैट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल स्पीड. आपको एक याद रखनी है. अगर एग्जांपल के तौर पे वही ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चलता है, सेकंड सेकंड में 7 चलता है और नेक्स्ट में 12 चलता है तो हर बार वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो वेरिएबल स्पीड से चल रहा है. नाउ द एवरेज स्पीड. स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चलेगा
तो उस समय में उसका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप उसकी अलग अलग टाइम की स्पीड कैलकुलेट करोगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज स्पीड बाय डिवाइडिंग या बाय अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the ratio of the total distance traveled by it to the total time taken total distance traveled. Average speed of a body is defined as the ratio of the total distance traveled by it to the total time taken. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय total time taken. This is the formula for the average speed. ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे जब वेरिएबल स्पीड होगी तभी उसके एवरेज स्पीड को निकालने की जरूरत होगी। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। दिस इज द average speed of the body or object. Now there is another speed, that is instantaneous speed. instant का मतलब होता है टाइम। स्टूडेंट, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप कोई स्पीड मेजर करते हो किसी भी टाइम पर, तो उस समय की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम दिया जाता है। Now what is instantaneous speed? It is the speed of an object at a particular instant of time. अगर कोई स्पीड चेंज हो रही है, if the speed of an object is continuously changing, if the speed of an object is continuously changing with time, अगर वो चेंज हो रही है विद टाइम और आप एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड देखना चाहते हो, then its speed at a particular instant is called its instantaneous speed. तो उस समय की उसकी स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी में स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही मेजर करता है, ये याद रखना। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम, देन इट्स स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस वर्ड को याद रखना, पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके स्टूडेंट, these are the types of the speed. Speed is the distance traveled by a body per unit time. That is speed, distance traveled divided by time taken. यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ा, वेरिएबल स्पीड हमने पढ़ा, एवरेज स्पीड हमने पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज वेलोसिटी। What is velocity? Velocity क्या होता है? Actually, velocity is just the displacement per unit time. अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है गिवन टाइम में, that is called velocity. The displacement of a particle or a body, the displacement of a particle of a body or a particle or a body per unit time is called the velocity of the body. अब
बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे विद इन अ टाइम, that is called the velocity, and that is velocity is displacement upon time. Displacement upon time, that is called the velocity. इसे आप velocity बोलते हैं. Okay student, this is the velocity. Now बात करते हैं इसके यूनिट की, क्योंकि velocity भी displacement upon time है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैलकुलेट करते हो मीटर में और टाइम को कैलकुलेट करते हो सेकंड में. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यूनिट बनेंगे मीटर पर सेकंड इन एसआई सिस्टम. सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड इन सीजीएस सिस्टम. अगर ग्रेटर यूनिट पढ़ना चाहते हो तो हो सकता है किलोमीटर पर सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की. डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस का जो डायमेंशंस होती हैं वो L होती है, टाइम की T होती है, तो L डिवाइडेड बाय T विच इज LT माइनस 1. जो स्पीड के डायमेंशंस हैं वही वेलोसिटी के भी डायमेंशन है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम नोट पॉइंट्स. कुछ नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. वेलोसिटी भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. सेकंड, सिंस डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, that's why velocity should be positive, negative or zero. Since displacement of a body, क्योंकि displacement positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है और zero भी. Since displacement of a body may be positive, negative or zero, so the velocity of a body also be positive, negative or zero. Okay student, this is the important concept. Also हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहता है या इक्वल हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता. तो that's why जो स्पीड है, क्योंकि हम वेलोसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम स्पीड लिख सकते हैं. पहले स्पीड ऑफ अ बॉडी इज, क्योंकि हम वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे स्पीड को, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर देन, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो वो स्पीड भी ग्रेटर हो सकती है. और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ग्रेटर भी हो सकती है स्पीड और इक्वल भी हो सकती है, बट कभी लेस नहीं हो सकती. स्पीड ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. ओके, सेकंड, जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है. और स्पीड इज ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर हो सकती है और इक्वल हो सकती है किससे? वेलोसिटी से. ओके स्टूडेंट, दीज आर सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स. नाउ द टाइप्स ऑफ द वेलोसिटी. जैसे स्पीड की टाइप्स है वैसे वेलोसिटी की भी टाइप्स है. फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अगर आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस समय में जो वेलोसिटी होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी. अ बॉडी और पार्टिकल is said to move with uniform velocity,
uniform velocity if it has equal displacement, if it has equal displacement in equal intervals of time, equal displacement in equal intervals of time. Okay students, howsoever small these intervals may be, ये चाहे टाइम के गैप कितने भी छोटे हो, तो जितना डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल हो रहा है वो इक्वल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसे आप वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी. नाउ if a body or a particle moves या cover unequal displacement in equal interval of time, तो उसकी velocity क्या हो जाएगी, non uniform हो जाएगी या variable हो जाएगी. A body or a particle is said to be moved with variable velocity if it has equal displacement in unequal interval of time. ऐसे भी लिख सकते हो, a body or particle is said to move with variable velocity if it has equal displacements in unequal intervals of time, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डेफिनेशन में क्या चेंज किया है, हमने चेंज किया है कोई भी पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से कहा जाएगा मूव कर रहा है अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसकी डेफिनेशन दूसरी तरह से भी दी जा सकती है. अगर आप ये बोलो अ बॉडी और अ पार्टिकल इज सेड टू मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट हैज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी लिख सकते हो. अ बॉडी और अ पार्टिकल इज said to move with variable velocity if it has unequal displacements in equal intervals of time. ओके स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा हमने पढ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल होगी इफ इट हैज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके स्टूडेंट, लिख सकते हो हाउसोएवर दिस स्मॉल इंटरवल में भी. ओके स्टूडेंट, नाउ एक और डेफिनेशन आप बना सकते हो. एक और डेफिनेशन है हमारे पास, जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बट डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं. अ बॉडी और अ पार्टिकल इज सेड टू मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सुपर्ब की पॉइंट. ओके स्टूडेंट, यहाँ से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी. हमने पहले भी पढ़ा, एवरेज तब निकालते हैं जब वेलोसिटी या स्पीड वेरिएबल होती है. तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? नाउ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो. यहाँ भी रेशियो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट का, किससे? टोटल टाइम टेकन से. तो एवरेज वेलोसिटी
of an object is defined as the ratio of the total displacement of the object to the total time taken for this displacement. That is, average velocity equal to total displacement divided by total time taken, that is total time. This is the formula for average velocity. Okay student, total displacement to the total time taken, that is called the average velocity. Now the next one is instantaneous velocity. Instantaneous, that is at a particular instant of time. जब आप velocity को calculate करो तो उसे बोलते हैं instantaneous velocity. The velocity of an object at a given instant of time. The velocity of an object at a particular at a given instant of time is called its instantaneous velocity. Okay students, this is the instantaneous velocity. Now we will discuss another important super key point. Suppose an object is moving with uniform velocity. Super key point में लिख रहे हैं. Let us consider an object is moving with uniform velocity. What will be its uniform velocity? What will be its instantaneous velocity? What will be its average velocity? When an object is moving with uniform velocity, स्टूडेंट अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होनी चाहिए क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है. तो एवरेज वेलोसिटी भी वही आनी चाहिए क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है. तो आप कह सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से और वो इक्वल होनी चाहिए उसकी एवरेज वेलोसिटी से. तो सभी वेलोसिटीज सेम हो जाएंगी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. देन इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सुपर्ब की पॉइंट. दिस इज द टॉपिक. Now we have studied speed and velocity. Speed, distance by time, that is speed. Uniform speed, variable speed, average speed, instantaneous speed. And velocity, displacement per unit time, that is the velocity. Displacement upon time, uniform velocity, instantaneous non-uniform velocity, average velocity and instantaneous velocity. Okay student, this is our today's topic. Thank you very much.